नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने समुद्री मछली पालन सुविधा का शिलान्यास किया। 5 दिवसीय ऑफलाइन मोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ और चातम स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। डॉलीगंज के अटल द्वीपीय समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के समुद्री मछली पालन सुविधा का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी, आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल, NIOT के निदेशक डॉक्टर G.A. रामदास एवं अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तथा उपराज्यपाल भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने समुद्री मछली पालन सुविधा की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तथा उपराज्यपाल ने शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में NIOT के निदेशक डॉक्टर G.A. रामदास ने उपस्थिति का स्वागत किया। As you are aware, India has around 7,500 kilometers coastline, and it has, if you include exclusive economic zone, extended EEZ and other areas given by United Nations, we have a large sea area which is comparable to our land area, which is a treasure trove of living and non-living resources. To explore and harvest these resources, we need reliable technologies. To develop these technologies, Ministry of Earth Sciences has started one organization called National Institute of Ocean Technology with a mandate to design, develop and demonstrate technologies for exploring and harvesting ocean resources. समारोह में उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने द्वीप समूह से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। When I was holding different portfolios as a Minister for Minority Affairs, I wanted to launch some programs here. As a Minister for Ayush, I had also thought about making some event to come here. As a sports minister also I tried. As a law minister, I wanted to come for some judiciary function. So many attempts were made, but unfortunately the timing was such that it took me 10 years to come back here. This is such a historic location and a huge valuable land for a country, and anybody who could come to Andaman Nicobar Islands would feel the history also and feel proud that so many of our brave freedom fighters had given their valuable time here. And the whole country had witnessed when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji renamed some of the islands and also given new names to some of the uninhabited islands in the name of the Paramvir Chakra awardees, and also launched various important projects here in Andaman and Nicobar Islands. के निदेशक ने माननीय केंद्रीय मंत्री तथा उपराज्यपाल को सम्मानित किया। समूह प्रमुख MBT डॉक्टर जी धरनी ने
कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शादीपुर के मौसम विज्ञान कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नए भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने उपराज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी, उपराज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष रखा। This we all know very well that India Meteorological Department since for a long time rendering service to the nation by providing time to time weather and climate services, warning, prediction, etc. Meteorological Center Port Blair is Meteorological Center is since from the last year, but this office of the India Meteorological Department here, it is from 1864. 1864, and earlier it used to work just like a meteorological office itself, but it is a strategic location for providing the weather and climate services in terms of monitoring, then your monitoring, prediction and predicting and warning of different hazardous, disasters, weather phenomena, all these things is over this location. I had accompanied the Honorable Minister to the previous session of NIOT, and now I am a witness to the initiatives being taken by the IMD, and it's, I think, it's a matter of absolute privilege for the islanders that such futuristic projects are being executed here, which will complement and contribute towards attainment of the Vikasit Bharat vision of the Honorable Prime Minister. He had come here earlier, as you are all aware, and he had highlighted the untapped potential of the islands, wherein in terms of land area we are bigger than couple of our mainland states, yet for whatever reasons, through decades of neglect in investment in infrastructure and so on and so forth, everything, as you know, is fairly rudimentary and basic here. We all know this island is very important and very critical for the whole of country. We have to ensure that this island becomes a fulcrum of development and also fully equipped with all necessary modern amenities. You all know the weather pattern these days. The climatic change which is happening so fast is having an adverse change in the weather pattern, weather behavior on daily basis. In the days to come, we are going to see more such phenomena which creates disturbances and disbalances in the normal functioning of our lifestyle because of the climatic change. सचिवालय के प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ, एनपीएस, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट तथा जीएम पर 10 से 15 मार्च तक 5 दिवसीय ऑफलाइन मोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिला वक्ताओं ने अपने विचार उपस्थिति के साथ साझा किया। मैकेनिज्म को तगड़ा मतलब मजबूत होना चाहिए। जैसा एक बिल्डिंग बनाते हैं उसका पिलर जिस तरह मजबूत होता है, उसी तरह आप लोग सभी एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर हो, अपने डिपार्टमेंट के पिलर हो। अगर आप इनिशियल स्टेज से मेहनत से काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगा। और ऑनेस्टली आप लोग काम करिए। देखिए, काम बहुत लोग करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, लेकिन ईमानदार और डेडिकेशन के साथ काम करना वो अलग ही मजा है। और इसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, हमने आज कुछ किया है, किसी के लिए भला किया है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए फोकस पेपर तैयार किया गया है, जिसका आज आयोजित हुए क्रेडिट सेमिनार के दौरान शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा, नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच आयुक्त सह सचिव ने बैंक की भूमिका पर प्रकाश डाला। जो कि किया जाना है वो सुचारू रूप से आगे बेहतर बढ़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे लोगों के लिए। दूसरी अहमियत
जो रखता है वो है बैंक्स। बैंक्स का अगेन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जब हम रूरल क्रेडिट की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी क्रेडिट की बात करते हैं, तो आदमी के इरादे हो सकते हैं, आदमी के पास एक्सपर्टीज हो सकती है, मार्केट में डिमांड भी हो सकती है, लेकिन अगर आदमी के पास क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट ग्राउंड पर टेक ऑफ नहीं कर सकता। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय को सम्मानित किया गया। बात करी है तो टाइप उनके साथ हमारे हमने शोर पे फैक्ट्स इसी के लिए उनको परमिशन से। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने आज परिषद के सभागार में अपना कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान परिषद की उपलब्धियों के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। जिला परिषद जब मैं अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इस भवन को करीब 2002 में ये भवन बना, ये करीब 22 साल हो गया, लेकिन इस भवन को कभी नाम नहीं मिला और मेरा मन में आया कि क्यों न इस भवन का नाम दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि सर्वसहमति से हाउस में पास करके हमने इस भवन का नाम दिया और ऐसे महापुरुष के नाम से इस भवन का नाम रखा कि पूरा विश्व उनको मानता है, हमारा राष्ट्र भी मानता है और इस देश के हर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सभी उस व्यक्तित्व को नमन करता है, मानता है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमने इस भवन का नाम अटल भवन रखा। और उसके साथ साथ में मैंने आपको बता दूं कि हमारा इस जिला परिषद का अपना जो पहचान होता है, लोगो, हर डिपार्टमेंट का एक पहचान होती है कि आपका लोगो क्या है, आपका क्या है, कार्यशैली का पहचान क्या है। फिर हमने जो है माननीय मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन के माननीय केशव चंद्रा जी के हाथ से यहाँ पे इसी भवन में लोगो लॉन्च किया और जिला परिषद को एक जो है अपना पहचान दिया। द्वीपों में 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे के आगमन की स्मृति में कल चातम स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र, आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
न्यू पहाड़गांव वार्ड संख्या 20 के सामुदायिक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद पंडित सेल्वी विश्वनाथन, शीला सिंह एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्षद पंडित सेल्वी विश्वनाथन, शीला सिंह तथा अन्य गणमान्य महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बाद में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Every year, International Women's Day is celebrated on 8 March. It's the day where women are recognized and appreciated for all their hard work and dedication in several activities like platforms and any other field. So, we have to respect every woman, not for the gender, because for their own identity. We have to accept that both men and women, they are equal. They equally contribute in all the aspects. So, we have to respect every हर मोड़ पर भी 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही। तुम अपनी उम्मीदों की उनको डगमगाने मत देना। सवाल करने से पहले मत हिचकिचाना। மற்றும் அதிகார அமைப்புகளுடன் இந்த ஆண்டு சர்வதேச மகளிர் தினத்திற்கான பருப்பொருள் குறிப்பாக முக்கியமானது, சார்புகளை உடையது. மகளிர் தினத்திற்கான கல்வியல், அரசியல் அல்லது சமூகம் என பல்வேறு வடிவங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம் தொடர்கிறது. कार्यक्रम में शीला सिंह ने महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला कि क्यों एक दिन महिला दिवस मनाया जाए। हमारा भी अधिकार है, पुरुषों को जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे अधिकार महिलाओं को है। और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। 50% अगर पुरुष है तो 50% विश्व की महिलाएं भी हैं। तो अगर ये विश्व और हमारा देश या कोई भी देश जो विकास वहाँ दिखता है, उस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं भी अपनी साझेदारी न दें। कारनिकोबार के ICDS द्वारा 8 मार्च को परखा गांव के सामुदायिक हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर कारनिकोबार के जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी तथा महिला प्रतिनिधि परखा गांव की सोफिया मेशाक सम्माननीय अतिथि थी। CDPO सुनीता कुमारी ने उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाश डाला। इस दौरान उपायुक्त द्वारा केक काटा गया। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने महिला सशक्तिकरण के महत्व, प्रगति तथा विकास को चलाने में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। समारोह के एक भाग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोर्ट ब्लेयर के टील हाउस में 26 फरवरी से 8 मार्च तक पर्यटन निदेशालय द्वारा टूरिस्ट गाइडों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 मार्च को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित हुआ।
इस मौके पर पर्यटन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण से भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। जानकारी दी जाए, टूरिज्म से रिलेटेड चीजें बताई जाए, जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग को लेकर सच में हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे और टेंस्ड भी थे और ये चीज़ को अच्छे से करना चाहते थे, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग हम अच्छा मतलब भुवनेश्वर से लोग आए हैं और उनकी उसमें आप देख रहे हैं सीखें कुछ यहाँ पर अंडमान में कुछ अच्छा करें, तो हम अगर अपने ऑफिस में बैठे हैं तो इस ट्रेनिंग के बारे में तब भी सोच रहे हैं कि ये अच्छे से हो जाए, आप लोग सीखें, हमारे जो आगे टूरिस्ट हैं उनके लिए मतलब एक्सपीरियंस उनका बेटर हो, एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि कोई इतने हजारों खर्च करके हमारे आइलैंड्स में आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस मतलब हम चाहेंगे कि अच्छा हो। और वो एक तो होता है कि वो किसी साइट पे आए और हम कहें कि ये देख लीजिए, एक होता है कि उसको बताना अच्छे से कि हाँ यहाँ पे ये है। आप एग्जाम्पल नेचुरल ब्रिज टाइम ले लो कि अगर जिसको नॉलेज है वो अच्छे से बता पाएगा चीजों का, जिसने सीखा है, जिसके अंदर पैशन है उसका गाइड का, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीखना, स्टडी, एक्सपीरियंस, पैशन, तो ये सब चीजों को लर्निंग को मिला के ही एक आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। इसके बाद प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। जैसे कहते हैं ना, गली गली कहानी मिल जाती है, वैसे हर एक प्लेस, हिस्टोरिक प्लेस, एक कहानी बन ही जाती है और जुड़ ही जाती है। तो IPNT, IITTM, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अबाउट दिस आइलैंड। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, खाली पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट थोड़ा पॉकेट मनी मिल जाए तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ में आने के बाद अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि पॉकेट मनी नहीं, आप अगर इससे सही से करोगे ना तो आप एक जन नहीं कर सकते, 10 से 100 जन को नौकरी दे सकते हो, 10 जन की एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। कारनिकोबार जिले के ICDS में 9 मार्च को सही पोषण देश रोशन विषय के साथ पोषण पखवाड़ा को लॉन्च किया गया। इस दौरान पोषण पखवाड़ा का उपस्थिति ने शपथ भी ली। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने समुद्री मछली पालन सुविधा का शिलान्यास किया। 5 दिवसीय ऑफलाइन मोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ और चातम स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।